Good morning, Diksha. Okay, we are on this topic of large scale fixed shops. We have discussed yesterday that here we are having three aspects which are not in our syllabus. One is supermarket, malls, and consumer cooperative. These are not in our syllabus. But what is in our in syllabus is that is departmental stores. Okay. Then we are having multiple shops and order business houses. Now we had the brief discussion yesterday about departmental stores, okay, or chain stores and mail order houses. Today we will discuss them in detail as to what these are, what are their merits, features, and everything. Okay. So first is your departmental store. Okay. So, departmental store basically is a store which specializes in wide range of durables. Okay, so you have variety of goods available. Okay, which are for the personal needs, residential needs, or you want various types of products like clothing is there, groceries are there, stationaries are there, toys are there. Okay, okay, then food items are there or cosmetics are there. So in this way we are having variety of products being available under one particular roof, and the whole setup is being divided into various departments, as we discussed yesterday, that these are being divided into various departments. You have like departments are pharmaceutical department is there, that is totally different. Okay, pharmaceutical is there, pharma department is there. Okay, that is different. You have the spare parts available. Okay, then there are certain glass products are there, that is different. Then books are there. Okay, that is different. Okay, then you are having another one is your toys are there, that is different. Kids, we can say that kids department is totally different. Okay, then ready-made garments are there. You are having garments department is there, that is different. Then sports products are there, sports equipment. Okay, that is different. So that is these are the various departments, or that whole organizational structure is divided into various departments. Okay, and they are providing you variety of products or variety of product lines. They are being providing mercantile lines which are said over here. Variety of product lines are being provided under one roof. Okay, and you have the वेरिएबल प्राइसेस ऑल्सो, मतलब उनमें प्राइस डिफरेंस भी होगा कि कहीं कुछ डिस्काउंट अवेलेबल होगा, कहीं पे कुछ डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको अंडर एक रूफ के अंडर मिलती है। वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं बेसिकली। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स बेसिकली इनमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है that these are generally located at the features which we are going to discuss, that what is so specialty that special aspects which make a departmental store different from a general store. First thing is that you have all the modern facilities available over there. Okay, you have to you have the travel inquiries. They have in some areas they have established their traveling facilities available for the consumers, because there is a big space which is being occupied by these departmental stores, and you need a special system within the departmental store area where you have to move from one
area to another area. So in that case, you need the travel facilities. So that inquiry is being made available. Okay. Then rest rooms are there. Okay. You want to do the buying activity. So they have provided you various rest rooms over there so that you, when you get tired, you can rest over there and then again carry out your buying activities. That is the another important thing. Then you have the information bureau available in that departmental stores, because these stores are huge enough to know where what products are available and which department is open and which department is providing what type of facilities. So that is why we need information bureau in these type of stores. Okay. Another important thing is that they provide you food facility, restaurant facility, gaming zones are there, so that you can freak out over there. You can have a easy time carrying out the trading activity or buying activity. तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स, होटल्स की फैसिलिटीज है, रेस्ट रूम्स की फैसिलिटीज है, गेमिंग जोन्स की फैसिलिटी है, और मसाज पार्लर्स की फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक रूफ के अंडर अलोंग विद बाइंग एक्टिविटी यू आर गेटिंग दीज फैसिलिटीज आल्सो। ओके। And these are generally located in the center of the city. Okay, center of the city मतलब ये नहीं कि आपका easily accessible area है, you have to travel to these areas। ये एक लिमिटेशन है इसमें, मगर ये सेंट्रल लोकेशन में है जहाँ से हर एरिया आपको हर एरिया से कस्टमर जो है उस पर्टिकुलर स्टोर को एक्सेस कर सकता हो इजीली। Means they can easily travel down to that particular departmental store. Okay. But these stores are located in such a situation where a large space is available for carrying out the trading activity. तो ये आपके पास एक important facility है। Another important thing is that these are providing variety of services generally to the high class customers। अब जो स्पेशली ट्रैवल करके जाएगा कस्टमर, उसकी पेइंग कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटीज जनरली हायर होती हैं एज कंपेयर टू दी मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। इन स्टोर्स में जाने के लिए आपके पास स्पेशल टाइम होना चाहिए, स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, एंड देन यू हैव वैरायटी ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यह प्राइस आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। मतलब जनरली लोग जाके enquire करते हैं कि ओके एट व्हाट प्राइस दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल। दिस इज नॉट द एम of the customers who are doing trading activity in these types of stores. They are not much concerned about the price of the product, but they are concerned about the quality of the brand and the pattern designs, features of the products which are available over there। तो जो सर्विसेज वहाँ पे मिलती हैं वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का। ओके। Another important thing is these stores are very huge in size, large in size. Okay। और ये जनरली एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम करते हैं। मैंने कल ही भी बताया था आपको कि जैसे अमेजन का एक एरिया बना है, या आइकिया ने एक स्टोर ओपन किया है हैदराबाद में। So they needed 12,000 square feet of area, or 5 lakh square meters of area by Amazon has been occupied for starting the head office in Hyderabad। तो ये इतने बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी ऑपरेट हो रहे हैं, यूरोप में ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह ऑपरेट होते हैं। ये एक पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं। इवन ये पब्लिक ऑफर्स भी लॉन्च करते हैं, आईपीओस लॉन्च करते हैं, जिसके थ्रू ये पैसा रेज करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह फंक्शन कर रहे हैं। Another important thing is that these
act both as retail as well as wholesale. मतलब यहाँ पे रिटेलिंग भी है और वेयर हाउसिंग भी है कि होलसेल वाले अगर इनसे बल्क में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ से बल्क बाइंग भी अवेलेबल है। अगर आपको यूनिट वाइज खरीदना है, स्मॉलर यूनिट्स असॉर्टमेंट्स खरीदनी है तो वो भी अवेलेबल है। तो हर तरह का स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है इस केस में। ओके, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ रिटेलिंग में आपके पास ये रिटेलिंग का भी एस्पेक्ट अवेलेबल करा रहा है और वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज की फैसिलिटी, इवन ये बल्क सेलिंग में भी ये एक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास। ओके, नाउ हियर another important thing is that they have a centralized purchasing system। यहाँ एक सबसे important aspect और है कि जो आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बाइंग होती है या डिसीजन मेकिंग होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। अब सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग मींस decision making means decisions are taken at in the head office। ओके, तो मतलब एक पर्टिकुलर हेड ऑफिस बन गया। अगर कंट्री ऑफिस है या कॉन्टिनेंट का ऑफिस है, एशिया स्पेसिफिक है या साउथ ईस्ट एशिया स्पेसिफिक है या वेस्ट एशिया स्पेसिफिक है, ओके, या फिर आपके पास क्या कहते हैं सेंट्रल एक बॉडी है जो वर्ल्ड वाइड उनकी एक हेड ऑफिस है। किसी का यूएस में होगा, किसी का यूरोप में होगा, किसी का दुबई में होगा, किसी का सिंगापुर में होगा। तो मतलब जहां भी हेड ऑफिसेज हैं वहां एक पॉलिसी बनाई जाती है कंट्री के रिगार्डिंग, कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग या पूरे सिस्टम के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाई जाती है और वहां से वो पॉलिसीज परकुलेट करती हैं डाउन द लाइन विद रिस्पेक्ट टू बाइंग एंड सेलिंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो एस्पेक्ट है इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इज एन important feature। Okay, now we are moving over to the next aspect, that is the advantages and disadvantages of departmental stores। First advantage is that they are buying on large scale. When they are buying on large scale, they are getting benefits of economies of scale। अब ये आपको इकोनॉमिक्स के टीचर्स ने पढ़ाया होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कि आप जब बल्क बाइंग करते हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। ओके, और जब आप बल्क प्रोडक्शन करते हो तो अब भी आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अब बल्क प्रोडक्शन में कॉस्ट क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आपके फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी जो भी रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हो वो पूरी तरह से यूटिलाइज होते हैं। मतलब अगर एक रुपए में से 90 पैसे की आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है तो मतलब आपको बहुत ज्यादा फायदा है। अगर एक रुपए में से 50 पैसे की प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है तो आपको वो ज्यादा फायदा नहीं दे रही। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है that you are generating maximum benefit out of the resources which you have employed for carrying out the business activity। तो ये सबसे important aspect है
क्योंकि आप यहाँ पे बल्क बाइंग एंड बल्क सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो रही है। मगर क्योंकि आजकल पेंडेमिक है और बाइंग सेलिंग एक्टिविटी बड़ी बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, तो दीज कंपनीज हु आर operating at a very big size, they have faced a huge problem of offloading their स्टॉक्स जो इन्होंने परचेज करके रखे हैं। तो इसलिए कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस समय सफर कर रही हैं बिकॉज देयर बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस दे हैड। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम बन गई है आजकल पेंडेमिक में। अदरवाइज दे आर जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स मार्जिन, मतलब हर अगर ट्रांजैक्शन पे थोड़ा भी मार्जिन रखेंगे तो क्योंकि बल्क में ट्रांजैक्शन करते हैं, सो दैट इज हेल्पिंग देम to generate huge amount of profits for the business. That is the first advantage. Second is shopping convenience to customer, because every other thing which is required to be purchased by the customer is available at one place under one roof. Okay, you have restroom facility, you have food facility, you have restaurant facility, you have theater facility, you have spa facility, you have gaming facility, you have kids corner available, and various other facilities are available. Libraries are available, internet cafes are available over there, and even your bars are available. Plus you have the shopping experience, or you have the various departments available who are providing you the experience of having a fine experience, interactive shopping activities being carried out by you. तो ये एक रूफ के अंदर इतने सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हैं दैट मेक्स शॉपिंग मोर कन्वीनियंट देन ए टायरसम जॉब। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का। अनदर थिंग इज दैट इज मेकिंग बाइंग प्लीजेंट, मीन शॉपिंग एक कन्वीनियंस के साथ ही इनका रिलेशन है। देन इज सेल्फ एडवर्टीजमेंट्स। ओके, one departmental store is advertising the large number of products under one roof। तो इसमें आपको हर प्रोडक्ट, हर डिपार्टमेंट की अलग से एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती। आप एक नेम, एक ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करते हो तो वहां से सबको एक्सपीरियंस है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जैसे अमेजन अगर अपने आप को एडवर्टाइज करता है तो हर प्रोडक्ट जो अमेजन के थ्रू सेल हो रहा है उसकी एडवर्टीजमेंट हो जाती है। फ्लिपकार्ट अपने आप को एडवर्टाइज करता है तो हर प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट के नेम के अंडर चल रहा है वो अपने आप को एडवर्टाइज करवा पाता है। और ऐसे ही कई और प्रोडक्ट हैं, बजाज है, या आपके पास मार्क्स एंड स्पेंसर्स हैं, या फिर आपके पास और कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। सो दीज स्टोर्स आर getting themselves advertised just under one particular brand name. All the products are getting advertised. Another important thing is it is having centralized location. सेंट्रलाइज्ड लोकेशन का मतलब है कि दीज आर अवेलेबल एट अ प्लेस विच इज इजिली एक्सेसिबल। थोड़ा सिटी के बाहर होता है मगर ये एक्सेसिबल होता है। हमने पहले ही डिस्कस किया है फीचर्स में कि दिस इज बीइंग preferred by those customers who are not concerned about the money. Okay, price of the product is not the major factor here. The experience of shopping, the quality of the product, and the brands are, and their design, their fresh lots are more important to the customer as compared to their prices. So they can easily travel to these centralized locations and carry out the buying activities। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि एक ऐसी जगह है जहां आप इजिली एक्सेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फार ऑफ भी नहीं है। एंड देन अनदर इज दैट इट इज हैविंग ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दीज आर बीइंग हैंडल्ड बाय the professionals, the MBAs, the engineers, the
chartered accountants and the economists, they all are working, because we have discussed in features only, that these are working like a that these are working like a joint stock company. Okay, when these are working like a joint stock company, so they can hire professionals from various fields: advertisement field, computer graphic fields. Then you are having engineers, who are making softwares. Then you are having the professionals, mbas, then chartered accountants, then various other individuals who are carrying out transactions in a professional way, or dealing these departments in a professional way. That is what the important aspect is. Okay, then there are disadvantages in this case. First thing is cost of operation. यहाँ आपको बहुत बड़ा स्पेस एक्वायर करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ही बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपको एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, प्रोफेशनल्स एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़ यू हैव टू कैरी आउट। तो ये क्योंकि आपको बहुत सारे स्टाफ को एम्प्लॉय करना है, बहुत सारी आपको इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, बहुत बड़ा स्पेस है जिसको आपको मेंटेन करना है, so it involves a huge amount of expenses on electricity, cleaning, and then various other aspects. So that is first disadvantage, that the cost of operation, इसमें wear and tear भी होती है, breakage of products भी होगा, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आएंगे। तो वो सारे लॉसेस आपको छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे बियर करने पड़ते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अनदर इज अनसुटेबल लोकेशन। मतलब आपको हमने पहले डिस्कस किया कि दैट यू हैव टू स्पेशली ट्रेवल फ्रॉम योर होम टू दीज स्टोर्स, then only you can carry out the buying activity, and that is a disadvantage for majority of customers who can't travel to these locations and carry out the buying activity. For example, आपके चंडीगढ़ में जैसे इलांटे है, तो इलांटे बिल्कुल सिटी के बाहर है। ओके, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि एवरीबडी कांट रीच और कैन विजिट टू दोज स्टोर्स, दो दे माइट बी हैविंग बाइंग कैपेसिटीज, but only those people who are having the transportation facilities, or they have the will to go over there, then they only can carry out the trading activity. Otherwise, no individual who is not interested traveling to such a far off place can carry out the ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो इससे जो फुटफॉल है वो भी थोड़ा लिमिट हो जाता है आपका इन स्टोर्स में। तो ये डिसएडवांटेज है। देन देयर इज लैक ऑफ पर्सनल टच, बिकॉज these stores are being run by professional organizations. Okay, and when these stores are being run by professional organizations, they are working as employees, they are serving as employees, and they are not interested whether the customer is satisfied or not, whether they are happy with the services being made available to them or not, whether the same customer will visit these stores again and again, because they are an employee in the organization and they are not much concerned about the customer requirement. So sometimes it can be possible that they are not dealing with them in a way a sole proprietor or a partnership firm or a joint Hindu family form of business individual will be dealing with their customers. तो ये personal touch नहीं होता है। That is the another important disadvantage. Another problem with these is that it requires huge amount of investment to start such big institutions or big organizations. Like you had recently, there was a buyout by Reliance for Big Bazaar. Big Bazaar was purchased by Reliance in 21,000 or 22,000 crore rupees, and there had been some problem with Amazon, Reliance, and future business. Okay, that is also in news. तो यहाँ पे आपकी जो हम बेसिक पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि रिलायंस ने फ्यूचर
ग्रुप को बाय आउट किया। ये सिर्फ रिटेल पार्ट की बात हो रही है, अभी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर की तो उनकी बात ही नहीं हो रही है। जो उनका रिटेल सेगमेंट है वो 22,000 करोड़ में खरीदा गया है रिलायंस से, और रिलायंस रिटेल खुद में ही 4.5 लाख करोड़ का है। तो आप समझ सकते हो। एंड अमेजन इटसेल्फ इज ए कंपनी ऑफ $1 ट्रिलियन। ओके, तो ये आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में। अभी एक और कंपनी आने जा रही है, Walmart and Tata are going to collaborate with each other, and Walmart is ready to invest $25 billion into Tata's। तो ये आप अपने आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पैसा चाहिए फॉर स्टार्टिंग दीज टाइप ऑफ स्टोर्स। So that is the problem with these departmental stores. Okay. Now we are moving next to the another topic, which is multiple shops और chain store systems. Okay. अब मल्टीपल शॉप्स हमने डिस्कस किया था कि जैसे रीबॉक है या नाइकी है या मैकडी है या डोमिनोज है या पिज्जा हट है या सबवे है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके मल्टीपल स्टोर्स के या चेन स्टोर्स के। इजी डे भी उसी का पार्ट है, मल्टीपल या चेन स्टोर्स के। ओके, तो ये इनकी मैनेजमेंट सेम होती है। ये सिमिलर टाइप के शॉप्स होते हैं, छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरह बहुत बड़े स्टोर्स नहीं होते हैं। ये छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, बट एक ही सिटी में यू विल फाइंड नंबर ऑफ स्टोर्स ऑफ सेम ब्रांड। बाटा के आपको स्टोर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लिबर्टी के बहुत सारे स्टोर्स एक ही सिटी में मिल जाएंगे। देन यू विल हैव मॉन्टे कार्लो इज देयर, यू विल हैव सच टाइप ऑफ स्टोर्स। बट आपको अगर स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से मल्टीपल स्टोर्स या चेन स्टोर्स होते हैं, तो आप सबवे या मैकडी या डोमिनोज को देखोगे, जिस तरह का उनका इंटीरियर्स या एक्सटीरियर्स या मेनू है एक पर्टिकुलर सिटी में, वैसा का पूरा सिस्टम अवेलेबल होगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टोर्स। हाँ जी। तो उनके अदर स्टोर्स में भी यही सिचुएशन रहेगी। हाँ जी स्वीटी, कुछ रेज्ड हैंड। तो चेन जो आपके पास मल्टीपल स्टोर्स हैं, उनमें इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर है। अब ये समझने की बात है कि दीज स्टोर्स आर आल्सो वर्किंग लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज इंडिविजुअल की तरह काम कर रही हैं, ये भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह ही काम करती हैं। जैसे आपके पास कैफे कॉफी डे है। कैफे कॉफी डे एक मल्टीपल चेन स्टोर था, मतलब अभी भी ऑपरेट कर रहा है, बट उसका जो ऑनर है उसकी डेथ हो चुकी है। तो ही वॉज रनिंग इट लाइक ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टारबक्स इज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। कोका कोला के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जैसे कोका कोला और पेप्सी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वैसे ही ये भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज की तरह काम कर रही हैं। जैसे आपके पास okay, so this is a joint, these are working like a joint stock company, first thing. Secondly, this management of these is being managed by the board of directors। तो ये आपके पास दो important aspects हैं कि एक तो ये joint stock companies की तरह function करती हैं, दूसरा इनमें board of directors है जो इनके पूरे system को manage कर रहे हैं।
ठीक है, फ्रेंचाइजेस दिए हैं, मगर इनको फ्रेंचाइज को वर्क किस तरीके से करना है जैसा कंपनी बोल रही है। अगर उन्होंने कोई मेनू दिया है किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। जो उन्होंने आपका इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स का प्लान दिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए जो मशीनरी आपको चाहिए, जो आपको और फैसिलिटीज क्रिएट करनी है उस स्टोर में, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी एज इट इज विच यू हैव एग्रीड विद दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये जो पॉलिसीज हैं ये कौन बना रही है? ये मैनेजमेंट बना रही है। ओके, जो वो मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू रन की जा रही है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर सेलिंग द सिमिलर प्रोडक्ट इन ऑल दी स्टोर्स। मतलब अगर एक सिटी में अगर आपके पास 4 स्टोर्स हैं, तो ये सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एंड दे आर सेंट्रली ओन्ड बाय द कंपनी अंडर वन मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे स्टोर्स एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के अंडर फंक्शन कर रहे हैं, सेंट्रली ओन्ड हैं, इनके पास सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और एक पर्टिकुलर सिटी में तो आपको स्पेसिफिकली सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। अब इसका फायदा क्या है कि अगर एक एरिया में कोई स्टोर चलना बंद हो गया आपका, तो यू कैन इजिली शट डाउन दैट स्टोर and take out all the goods available or the machinery available and move that into the other store which is running in a very profitable way. And that is what the benefit is in case you are having the same type of menu and same type of products available in the store which are being run by one particular management. तो ये चेन स्टोर्स का है। तो हमने क्या डिस्कस किया है कि यहाँ पे इनमें बहुत सारा पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड दीज आर not like departmental, but they are small shops, but they are number of shops being available in one particular city or in a particular state. Okay, and these are managed by a joint stock company which is run by board of directors, and these are having almost similar type of products available in various stores being run by this joint stock company. That is what the मल्टीपल चेन स्टोर इज। ओके, ये आपके पास इसका क्या है, सिमिलर शॉप्स आर एस्टेब्लिश्ड इन मल्टीपल्स। ओके, तो ये आपके पास है। अब हम आगे चलते हैं इनके फीचर्स के कि क्या इसके फीचर्स हैं। So the features are, first feature of these stores is that these are centrally controlled and managed. Okay, these are controlled by one particular management, and they are making the policies for these type of stores in the head office. Okay, head office can be at Delhi, it can be at Bombay, it can be in New York, or it can be in London. सो जहां इनका हेड ऑफिस होगा वहां से पॉलिसीज बन के प्रिस्क्राइब की जाएंगी, एंड दैट विल बी एक्सप्लेन्ड, एंड एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग मैनेज्ड एंड कंट्रोल इज बीइंग डन by the head office. They are collecting the information data from various areas and then analyzing and then formulating the policies for all these stores. तो ये ब्रांचेस जो हैं ये सारी की सारी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर हेड ऑफिस से रन की जा रही हैं। तो ये आपके पास पहला फीचर है। सेकंड थिंग इज स्पेशलाइजेशन होती है इनकी इन वन और फ्यू कमोडिटीज। आप देखोगे कि जो आपके पास बर्गर्स में या केएफसी पे चले जाओ तो केएफसी की स्पेशलाइजेशन हैं कुछ एरियाज में। It is not necessary that they are going to produce every type of product. मतलब KFC is providing you snacks. तो अगर आप कहो कि नहीं हमें तो ग्रेवी वाला चिकन खाना है, सॉरी, दैट इज नॉट अवेलेबल ओवर देयर। ओके, तो आपको जो प्रोडक्ट उनकी स्पेशलाइजेशन है, बर्गर्स हैं मैकडी के, तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड है। सबवे में उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट की हुई है, एंड दे आर डीलिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन एंड दैट particular specialization. They are not dealing with multiple type of products, okay, where they are not specialist. Okay, तो ये
आपको स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर दे आर एक्सपर्ट इन द एरिया। अगर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स चाहिए तो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल मिलेंगे। अगर आपको जैसे आईफोन के आउटलेट्स आने जा रहे हैं तो आईफोन की जो फैसिलिटीज है मतलब मोबाइल फैसिलिटीज है वो मिलेंगी। अब इस तरीके से उन्होंने अपने स्टोर्स खोले हैं, तो इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन हो सकती है या स्पेशलाइजेशन हो सकती है। जैसे लेदर की कोई कंपनी है तो लेदर के प्रोडक्ट्स बेच रही है डिफरेंट स्टोर्स के थ्रू, दे विल बी स्पेशलिस्ट इन लेदर ओनली एंड दे विल बी डीप इनटू दैट पर्टिकुलर लाइन। तो ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है या फीचर है दी स्टोर्स का, दैट दे आर स्पेशलाइज्ड in one or few commodities and they are only focusing on that particular line of the products. Another important thing is that they are providing you standardized products, price, quality, design, size इसमें standardized है। ऐसे नहीं मिलेगा कि जो आपको टेलर मेड साइज चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। आपको एक स्टैंडर्ड साइज देंगे, 43, 44, 41, 42, 40 इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड साइज देंगे। डिजाइन भी इनके डिफाइंड होंगे, हर तरीके का डिजाइन नहीं मिलेगा। जो डिजाइन इनके होंगे वो एक्सप्लेन्ड होंगे, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ डिजाइन होगा, पैटर्न ऑफ डिजाइन होगा, उससे ज्यादा आपको डिजाइन्स नहीं मिलेंगे। ओके, फिर क्वालिटी है, क्वालिटी में भी उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं। अगर उनकी क्वालिटी उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करती है, उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में डाउन जाएगी। तो मतलब अगर मैकडी या सबवे या पिज्जा हट से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, देन दे विल लूज देयर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट बिकॉज दे आर नॉट मेंटेनिंग द सेफ्टी, हाइजीन एंड वेरियस अदर स्टैंडर्ड्स दे आर रिनाउंड फॉर। तो वो क्वालिटी उनको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और उनकी प्राइस फिक्स्ड रहती है, स्टैंडर्डाइज नॉन नेगोशिएबल प्राइसेस होती हैं। तो ये आपके पास हैं कि सो दे आर सेलिंग ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स in various localities. Okay. Now, next is your another features are that these are doing this centralized buying. So buying and buying is done in a centralized way, whereas selling is done in a decentralized way. Okay. So different you are making a hierarchical structure where various retail organizations are helping you in selling your goods, but centralized buying is happening. Supposingly, if they have to buy shoes or leather for production of shoes, so that will be done in a centralized way, means a bulk order will be placed from the head office to various production centers. Okay, and that is the another, that is the important feature of these, that they are doing this centralized buying from the head office. Okay, and sales is being done through various selling points. Okay, लोकल परचेजेस नहीं अलाउड हैं आपको। ओके, और सेल जो है वो ब्रांचेस के थ्रू की जाती है, इसलिए उसे डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग कहा जाता है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट इट इज डन ऑन कैश बेसिस। जो सेल्स है वो कैश बेसिस पे, आपको इसमें कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे आपकी नेबरहुड शॉप में आपको क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, वो क्रेडिट फैसिलिटीज आपको नहीं अवेलेबल हैं, कैश बेसिस पे हैं। एंड कैश एंड कैरी प्रिंसिपल इज द मेन प्रिंसिपल विच इज बीइंग फॉलोड बाय दीज स्टोर्स, एंड दैट इज द अनदर important फीचर of multiple chain stores. Okay, then we are having next topic is our next is nature of advertisement is there. Okay, so in case advertisement, window display or the advertisement which is being used is common for all the shops। मतलब ये नहीं कि हिसार के चेन स्टोर्स के लिए अलग एडवर्टीजमेंट होगी, रोहतक में अलग होगी, जींद में अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड एडवर्टीजमेंट, कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज भेजा जाता है, वो सारे स्टोर्स के लिए
ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि all these branches are dealing in the same type of products, same type of quality, price, and various other aspects are common. So there is a common advertisement for all these stores, and it helps in easily identifying the stores, okay, in the public, that public can easily identify these stores from their interiors, exteriors, menu, that what they are selling, what quality they are selling, their quantity, their price, and every other aspects जो उन्होंने फीचर्स अपने बताए जाते हैं एडवर्टीजमेंट में, उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन स्टोर्स को, क्योंकि इनका सारा कुछ पैटर्न एक जैसा ही दिखेगा आपको जहां पर भी ये स्टोर्स अवेलेबल होंगे. दैट इज अनदर important feature. Then there is movement of goods between branches. If one store is not doing good, then we can shut down that store, or the goods which are not selling are not easily selling at one place, so we can move those goods to the other area where they are selling easily, okay, or they can be sold easily. We can move those goods from one store to another store. But if supposingly if one store is in emergency need of certain goods which they are in shortfall of, so they can hire those goods from the other store also. तो ये एक सिस्टम है कि आपकी अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो आप दूसरे स्टोर से आप प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हो, और अगर आपकी डिमांड ख़त्म हो गई है, आपकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है एक पर्टिकुलर एरिया में, यू कैन शट डाउन दो स्टोर्स एंड मूव टू दी अदर एरिया. तो ये आपके पास अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है. I suppose this is all for today. And next topic which is lined up is your advantages and disadvantages of multiple chain stores. We will do this in next lecture. Till then, thanks. Thanks to all.